Long life is God's will. और लंबी आयु वो खुदा की इच्छा है। There are so many promises in the Bible which comes with condition, which also comes without condition. और बहुत सारे वायदा बाइबल में ऐसा है कि वो शर्तों के अनुसार आता है, कई वायदे बिना शर्तों के अनुसार आता है। Without conditions means grace of God, by God's grace. बिना शर्तों के अनुसार के मतलब है कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। You know, even though by grace we have a long life, we can also practice the word of God. We can also fulfill the Old Testament conditions. और अनुग्रह के द्वारा वहां पे लंबी आयु रहे तो भी हम लोग जो पुराना करार का जो नियम है, जो वचन का पालन करना, वो पालन करना चाहिए। You know, in the Old Testament, if you obey, blessing, otherwise no blessing. पुराना करार में अगर आप वचन का अधीन होए तो ही आपको आशीष था, नहीं तो नहीं था। Are you with me? आप मेरे साथ हैं? In the New Testament, नया करार में he obeyed, you have a blessing. उन्होंने अधीन हो गया, आपको आशीष मिला। That means should we obey the word of God or no? तो इसका मतलब हम लोग वचन का अधीन होना क्या नहीं होना? Hello. By grace we have a long life, no? Then why we should read the Bible? Why we should honor our parents? Why we should worship? अनुग्रह के द्वारा ही वहां पे लंबी आयु है तो क्यों हम माता पिता का आदर करना चाहिए? क्यों हम परमेश्वर की आराधना करना चाहिए? क्यों हम बाइबल पढ़ना चाहिए? Hello. You know, when we have the grace of God, कब हमको परमेश्वर की अनुग्रह जब रहता है तो we love God. हम खुदा को प्रेम करते हैं। Because we love God, we obey the word of God. खुदा की हम प्रेम करते हैं इसलिए हम वचन को अधीन होते हैं। Rather I can say because we have the Holy Spirit in us and the grace of God, it is easy now for us to obey the word of God. और हमको पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, अनुग्रह, खुदा का अनुग्रह हमारे साथ है, तो अब बहुत ही वहां पे सुलभ है परमेश्वर का वचन का अधीन होना। You know, somebody asked me this doubt. कोई तो एक जने मुझे आके पूछे ये संशय को। And I said, in the New Testament, it is by grace through faith. और नया करार में कह रहा है कि अनुग्रह से वहां पे विश्वास के जरिए वहां पे सब कुछ होता है बोल के। Then why we should read the Bible? और क्यों हम बाइबल पढ़ना चाहिए? Why we should worship? और क्यों हम आराधना करना चाहिए? Why, you know, we have to honor the parents. All these things, why we have to do? और हम परमेश्वर की क्षमा करिए, वहां पे माता पिता की आदर करना बोले तो वो सब क्यों चाहिए हमको? There is no need, no? वहां पे कुछ We are in the New जरूरत नहीं है Testament. ना? Why to do all the Old Testament word of God? और सारे नया करार आ चुका है, नया करार कहे तुम पुराना करार का पुराना नियम का क्यों बोल रहे हैं? The Old Testament reveals the heart of God for us. और पुराना करार वो परमेश्वर का हृदय को हमको प्रकट करता है। They were unable to do it because they had a nature in them. वो लोग नहीं करते थे क्योंकि उनके अंदर पाप का स्वभाव था, इसलिए। We can do it because we don't have sin nature. हम लोग कर सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर पाप का स्वभाव नहीं है। We have Holy Spirit of God in us. और हमारे अंदर पवित्र आत्मा जो खुदा का पवित्र आत्मा है। We can practice word of God. हम लोग वचन को वहां पे काम में ला सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। First you should know about the will of God. पहला आप जानना चाहिए कि खुदा का इच्छा क्या है बोल के। God's will is you should live long life. खुदा का इच्छा ये है कि आप लंबी आयु से जीना चाहिए बोल के। Bible says our Father will satisfy us with long life. बाइबल कहता है कि हमारा पिता हमको दीर्घ आयु से तृप्त करेगा बोल के। Amen. Say, my Father will satisfy me with long life. मेरे पिता मुझे दीर्घ आयु से तृप्त करेगा। Hallelujah. हालेलुया। But there are Old Testament, this long life comes with condition. पुराना करार में ये जो दीर्घ आयु वो एक शर्तों के अनुसार आता है।
When you worship, when you read the word, you have this blessing. कब हम आराधना करते हैं तो कम वचन पढ़ते हैं तो हमको ये आशीष मिलता है बोल Say के after me, as we worship as a family, our Father blesses food and water and removes sickness away from us. No one will be barren in our family. No one will have a miscarriage in our family. Everyone will have a long life. कब मैं परिवार होके आराधना करता हूं तो मेरे अन्न और जल पर आशीष देगा, मेरे अंदर से, मेरे परिवार के अंदर से सारा बीमारी को दूर निकालेगा, मेरे घर में कोई भी बांझ नहीं रहेंगे, गर्भस्राव नहीं रहेगा और हम सब लोग लंबी आयु से तृप्त होंगे. Okay, say one more scripture. As I read the word of God and obey it, everything will go well with me. Everything will go well with my children. And we will have long life. कब मैं वचन को पढ़ता हूं, उसके जैसा चलता हूं तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है, मेरे बच्चों के साथ सब कुछ अच्छा होता है और मैं लंबी आयु से जीता हूं. More scripture. As I honor my parents, everything will go well with me and we will have long life. कब मैं मेरे माता पिता के आदर करता हूं तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है और मैं लंबी उम्र से जीता हूं. Hallelujah. हालेलुया. See, these are all with conditions. और ये सारे शर्तों के अनुसार आता है, But good to do it. लेकिन ये करना अच्छा है You have the ability to do it. और ये आपको करने के लिए आपके अंदर सामर्थ्य है, The Spirit of God is inside you. क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है. But now what I am teaching is, by grace you can have a long life. अभी मैं क्या सिखा रहा हूं आपको बोले तो अनुग्रह से आपको वहां पे लंबी आयु रहेगा. Grace provides long life. अनुग्रह दीर्घ आयु देता है By faith you have to take. और विश्वास के जरिए आप उसको लेना है. How to take it? By faith. और कैसा विश्वास के जरिए इसको लेना चाहिए. To take it by faith, we have to learn faith principles. और विश्वास के जरिए उसको लेना बोले तो आप लोग विश्वास का नियम को सीखना चाहिए. There are 4 steps I taught. और 4 अंश मैं आपको बताया हूं. Look here. The first step to activate faith is dream the word of God. और ये विश्वास काम में लाने के लिए पहला कदम यह है कि परमेश्वर का वचन का सपना देखिए. Dream the scriptures. और वचन वो सपना देखिए. Dream the promises of God. और परमेश्वर का वायदों को लेके सपना देखिए. About long life. और दीर्घ आयु के लिए. About health. और स्वस्थ सेहत के लिए. About wealth. और संपत्ति के लिए. About your family. आपके परिवार के लिए. All the promise of God should become your dream. सारे खुदा के वायदा आपका सपना होना चाहिए. If dream is not there, then blessing will not be manifested. अगर सपना वहां पे नहीं है तो आशीष वहां पे दिखलाता नहीं है. You can't take it by faith. Some other way you can take. आप विश्वास से ही लेना चाहिए, नहीं तो कहां से कैसे तो भी लेना You पड़ेगा. can work hard for it. और उसके लिए आप कंटिन्यू वहां पे काम करके लेना पड़ेगा. First have the dream. पहला आपको एक सपना रखना पड़ेगा. Second step is speak the dream. दूसरा कदम वो सपने को लेके बात करिए. As you speak the dream, every dream will become real in your life. कब वो सपने को लेके जब आप बात करते हैं तो सारे आपके सपने सच्चाई में हो जाता है. Hallelujah. हालेलुया. And the third step is और तीसरा अंश ये है be patient. और धीरज से रहिए. And the fourth one, और चौथा
look at the cross. क्रूस की ओर देखिए, It is a sign of a blood covenant. और वो लहू की वाचा के एक चिन्ह है। You will have a long life because you belong to a blood covenant. आप वहां पे लंबी उम्र से जीते हैं क्योंकि आपको लहू की वाचा है। Say after me. First step. Okay, what is the first step? पहला अंश कौन सा है? Dream the word of God. Speak the dream. Be patient. Look at the cross, which is a sign of blood covenant. सपना रखिए, सपने को लेके बात करिए, धीरज से रहिए, क्रूस की ओर देखिए, जो लहू की वाचा का चिन्ह है। So when I say look at cross means I'm not talking about wooden piece. कब मैं क्रूस की ओर देखो बोलने का मतलब ये नहीं है कि वहां पे एक लकड़ी के खंबे को देखो बोल के। What Christ has accomplished on the cross क्या यीशु मसीह ने क्रूस पर जो खत्म किया है उसको देखिए। for your long life, फॉर आपके लंबी उम्र के लिए, for your sickness free life, आपके बीमारी नहीं रहित जीवन के लिए, to have a good health, what he has done on the cross. आपके सेहतमंद स्वस्थ आरोग्य के लिए क्या वो क्रूस पर किया है बोल के। Bible says we all belong to the everlasting blood covenant. बाइबल कहता है हम सभी लोग सनातन के वाचा के संबंधित है बोल के। And God is working in us to do his will. और खुदा ने हमारे अंदर काम कर रहा है उसकी इच्छा को करने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? आप मेरे साथ हैं? Okay, I'll just again repeat it. मैं फिर से दोहराता हूँ। In the beginning, God and man were together. शुरुआत में मनुष्य और खुदा एक दूसरे जुड़े हुए थे। No sin, वहां पे पाप नहीं था, no sickness, वहां बीमारी नहीं था, no poverty, वहां पे गरीबी नहीं था, no death. वहां पे मृत्यु नहीं था। Sin separated man from God. पाप मनुष्य को खुदा से अलग कर दिया। Now God and man are separated. अभी मनुष्य, खुदा और मनुष्य अलग अलग हो गए। Sickness came, बीमारी आया, poverty came, गरीबी आया, death came. मृत्यु क्या आया। Now the good news is लेकिन अब शुभ संदेश ये है the कि blood of Jesus यीशु मसीह का लहू brought a man nearer to God. मनुष्य को खुदा के निकट में लाया। Hallelujah. हालेलुया। Bible says बाइबल कहता है Jesus tasted death on the cross on behalf of all men. सारे मनुष्य के जगह के बदले में यीशु मसीह ने मृत्यु को चक्का बोलकर बाइबल कहता है। Say after my Jesus tasted death on behalf of me. मेरा यीशु मेरे जगह में मृत्यु का स्वाद का चक्का है। See, this is nothing to do with you. He has done it. ये आपसे कुछ लेना देना नहीं है, वो किया है। What he has done, now we have to believe. और जो वो किया है हम उसको विश्वास करना है। Because he tasted death on behalf of me, no need for me to die now. मेरे जगह में वो मृत्यु को चक्का है बोलने के बाद मुझे मरना जरूरी नहीं है। See, sin separated man from God. देखो यहाँ पे पाप मनुष्य को खुदा से अलग कर दिया, Death came. मृत्यु आया। The blood of Jesus brought man to God. और यीशु मसीह का लहू मनुष्य को खुदा के निकट में लाया। Now life has come. अभी जीवन आ गया। Hallelujah. हालेलुया। So there is no need for you to die. और आपको मरने का जरूरी नहीं है, You have to live आपको जीवित रहना है and declare the works of the Lord. और खुदा का कामों का वर्णन करना है। Say, I shall not die. I will live and declare the works of the Lord. मैं नहीं मरता हूं, मैं जीवित रहकर खुदा के कामों का घोषणा करता हूं। It's very important because people are going to hell. We have to bring them to Jesus. क्योंकि बहुत ही मुख्य है, लोग वहां पे नरक को जा रहे हैं, हम लोग उन लोगों को यीशु मसीह की ओर लाना है। We have to live. हम लोग जीवित रहना We है have to live a long life. और हम लोग लंबी आयु से जीना है। But at the same time, I say, उसी समय में मैं ये भी बोला, this is mortal body. ये नश्वर शरीर है This body cannot go to heaven. और ये शरीर स्वर्ग को नहीं जा सकता। There are only two ways. वहां पे दो मार्ग है। A person has to die, they have to bury him.
जो व्यक्ति मरता है उसको दफनाया जाता है। Bible call it as a sowing. बाइबल कहता है वो वहां पे बोना जैसा। When the trumpet is blown, कब तुराई फूके जाती है, when Jesus comes back, कब यीशु मसीह वापस आता है, the body which is buried will rise back. जो दफनाए गए शरीर वो वापस आता है। You will get a new body. आपको नया शरीर मिलता है। We sow a natural body, reap a spiritual body. और सामान्य स्वाभाविक शरीर वहां पे बोते हैं, आत्मिक शरीर वहां से उठ जाते हैं उसके द्वारा। And those who are living, और जो कोई भी जी रहे हैं, Bible says we all will be changed. बाइबल कहता है हम लोग बदले जाते हैं। This mortal body will put on immortality. ये नश्वर शरीर अविनाशी शरीर को पहन लेता है। This will happen at the second coming of Jesus. और ये यीशु मसीह का दूसरा आगमन के दिन होता है। But when you are living now, लेकिन आप जो जी रहे हैं, every man body is a mortal body. हर एक मनुष्य का जो शरीर है वो नश्वर का शरीर है। But there is difference between you and those others. लेकिन आपको और दूसरे में वहां पे अंतर है, व्यत्यास है। Others, they don't belong to the blood covenant of Jesus. दूसरे लोग वो यीशु मसीह के लहू के वाचा को संबंधित नहीं है। You belong to the blood covenant. लेकिन आप लहू की वाचा को संबंधित है। So even though it is mortal body, the spirit of the Lord who has risen, the dead body of Jesus is dwelling inside us. ये नश्वर शरीर हुए तो भी जो यीशु मसीह का मुर्दा शरीर को जो जिंदा किया वो आत्मा इसमें बसता है। Resurrection power is inside us. और इसके अंदर जी उठने का शक्ति है। And Bible says he quickens our body. बाइबल कहता है हमारा शरीर को जिलाएगा बोल के। Hallelujah. हालेलुया। When he quickens, कब वो every day that supernatural energy is infused into your body. और कब वो जिलाता बोलने के बाद हर दिन अस्वाभाविक जो शक्ति वहां पे अंदर काम करता रहता है। Not only that, उतना ही नहीं, you know, when man was separated, sickness came. कब मनुष्य अलग हुआ था तो बीमारी आया था। When man came to Jesus, कब मनुष्य मसीह यीशु के पास आने के बाद no need for sickness. वहां पे बीमारी का जरूरत नहीं है। Bible says बाइबल कहता है Jesus carried all our sickness, all our pains in his own body on the cross. बाइबल कहता है पतरस में यीशु मसीह ने हमारे सारे बीमारी को, सारे दर्द को वो क्रूस पर उठा लिया बोल के। Hallelujah. हालेलुया। Last week I explained it, okay? और पिछले हफ्ते मैं उसको विवरण किया हूँ। Say, my Jesus bore all our sicknesses and carried all my pains on the cross. मेरा यीशु मसीह मेरे सारे बीमारी को, मेरे सारे दर्दों को क्रूस पर उठा लिया है। You know, that he has done it. और वो किया है वो। No need for you to carry pain. और आपको दर्द को लेके आप सह लेना नहीं, उठा लेना नहीं। No need for you to have any sickness. और आपको कौन सा भी बीमारी में नहीं रहना पड़ेगा। You may feel pain. शायद आप वहां पे दर्द को महसूस कर सकते You हैं, may feel. शायद आप महसूस कर सकते Your हैं, feeling is not truth. लेकिन आपका जो महसूस वो सत्य नहीं है। The truth is Jesus Christ carried all your pain on the cross. लेकिन सत्य यह है कि यीशु मसीह आपके सारे दर्द को उठा लिया है। Grace provided. अनुग्रह से दिया गया है, We believe it. हम उसको विश्वास किए, We take it. हम उसको लिए हैं। Hallelujah. हालेलुया। And Bible says और बाइबल कहता we है have been healed by the stripes of Jesus. और हम यीशु मसीह के खोड़े से चंगे हो चुके हैं बोल के। Amen. Say, I have been healed by the stripes of Jesus. मैं यीशु के खोड़े से चंगा हुआ हूं। Some more things we'll see how Christ set us free. और कई चीजें देखेंगे कैसे यीशु मसीह ने हमको वहां पे छुड़ाया, छुटकारा Why? दिया बोल के। Because this blood covenant, you How? can have a sickness free life. कैसा क्यों ये लहू की वाचा और वो कैसा हमको बीमारी में नहीं रहे जैसा रखता है बोल Now के। come with me to Ephesians 1st chapter. एफेसियों का पहले अध्याय की ओर आप आइए। पहला अध्याय 7वां वचन। In whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins,
according to the riches of his grace. पहला अध्याय 7वें वचन इफिसियों का, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है. Hallelujah. It says, in whom we have a redemption through his blood and forgiveness of sins according to the riches of his grace. यहां पे कहता है उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा बोलकर कहता है. Only one part we'll see it. Okay? खाली एक ही भाग को हम देखेंगे. In whom we have redemption through his blood. और हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा है. Hallelujah. हालेलुया. In Christ we have redemption through his blood. मसीह के अंदर हमको लहू के द्वारा छुटकारा है. Say in English, in Christ I have redemption through his blood. मसीह के अंदर उसके लहू के द्वारा मुझे छुटकारा है. You know, the word redemption looks like some religious term. छुटकारा वहां पे धार्मिकता के एक शब्द के जैसा लगता है. We don't understand it because we don't see slaves nowadays. हम लोग नहीं समझते हैं क्योंकि आज के दिनों में हम लोग गुलामी को नहीं देखते हैं. In those days, slaves used to work for the master. और उन दिनों में गुलाम लोग उनके जो मालिक लोगों के लिए काम करते थे. You know, if somebody pays the money, then they can redeem the slave from the master. और जो कोई भी उनके लिए कोई पैसा वहां पे भरे तो ही उनके मालिक से उस गुलाम को वहां पे छुटकारा करते थे. Till somebody pays the price, he will be a slave for his master. कब तक उसका जो कीमत वहां पे कोई भी नहीं भरते थे तो तब तक उसके मालिक के अंदर ही वो गुलामी का काम करता रहता But था. the moment money is paid, he is free. कब वो पैसा चुकाया जाता था तो तभी वो छुटकारा पा लेता था. We all were the slavery of Satan, kingdom of darkness. हम सब लोग अंधकार के शैतान के हाथों में हम लोग गुलामी में थे. That's why we don't want to sin, we will sin. इसलिए हम पाप नहीं करना चाहते थे फिर भी हम करते थे. Sickness was there. वहां पे बीमारी था. But Jesus, by shedding his blood, redeemed us. लेकिन यीशु मसीह उसका लहू बहाते हुए हमको छुड़ाया है. So when he says redeemed us, it's not only from sin, he redeemed us out of sickness, poverty and all curses. और जब छुड़ाया बोलने के बाद खाली वो पाप से नहीं छुड़ाया है, वो हमको बीमारी से छुड़ाया है, गरीबी से छुड़ाया है, सारे शरापों से छुड़ाया है. He has redeemed us out of the hand of Satan. और वो हमको शैतान के हाथों से छुड़ाया है. Say after me, through the blood of Jesus, I have been redeemed out of the hand of Satan. यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं शैतान के हाथों से छुड़ाया गया हूं. I'll explain little better. Say after me. Through the blood of Jesus, I have been redeemed out of sin, sickness, poverty and all curses. यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं सारे पापों से, सारे गरीबी से, सारे बीमारी से, सारे श्रापों से छुड़ाया गया हूं. See, the purpose God saved you is not just take to heaven. Not only to take to heaven. खुदा आपको जो उद्धार दिया है खाली आपको स्वर्ग को लेने के लिए, लेके जाने के लिए नहीं. He saved is when you live here, you should have a good health. जो उद्देश्य ये है कि जो आपको उद्धार दिया है आप यहाँ पे रहकर वो रहना है. You should have a good health. आपको तंदुरुस्ती में रहना बोल के, You should have wealth. आपको संपत्ति रहना बोल के, You should have blessings. और आपको आशीष रहना बोल के. Hallelujah. हालेलुया. Now listen to me. अभी मेरा सुनिए. You know, our salvation in the Old Testament, God
revealed it through the history of Israel. और इज़राइल के इतिहास के द्वारा खुदा ने हमारा वहां पे उद्धार को पुराना करार में बताया है। Hallelujah. हालेलुया। How we are saved from the world. ये संसार से हम कैसे उद्धार पाए हैं? The same way God brought Israelites out of Egypt. वैसा ही खुदा ने इजरायली लोगों को मिस्र देश से बाहर लाया। 400 years they were slaves. 400 साल वो लोग गुलामी में थे। They were not eating food properly. वो सही से खाना नहीं खाते थे They were working for long hours. और बहुत ज्यादा समय के लिए वो लोग काम करते थे। They were not wealthy वो लोग संपत्ति लोग नहीं थे and they were not healthy. और वो लोग तंदुरुस्त स्वस्थ लोग नहीं थे। Most of them were sick वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे बीमारी में थे because they had to work 12 hours, 14 hours. क्योंकि वो लोग 12 घंटा 14 घंटा वो लोग काम करना They था were not eating normal food. और सामान्य एक खाना भी नहीं खाते थे वो लोग। In that condition, God brought them out. वो स्थिति से खुदा ने उनको बाहर लाया। When God brought them out, overnight what happened? और जब खुदा उनको जब बाहर लाने के बाद एक ही रात में क्या हो गया? Psalms 105 भजन संहिता 105वां अध्याय verse 37. और 37वां वचन। Psalm 105 verse 37. भजन संहिता 105 37वां वचन। He brought them forth also with silver and gold, and there was not one feeble person among the tribes. तब वो इस्राएल को सोने चांदी दिलाकर निकल लाया और उसमें से कोई निर्बल न था। Hallelujah. हालेलुया। He brought them out with silver and gold. और उनको वो बाहर लाया सोना और चांदी से। One person was not feeble among them. और उनमें से एक व्यक्ति भी निर्बल नहीं था। One person was not weak among them. उनके अंदर एक व्यक्ति भी निर्बल नहीं था। How it is possible? ये कैसा हो सकता है? 40 years they were walking. 40 वर्ष तक वो लोग वहां पे चल रहे थे। Hallelujah. हालेलुया। They were rich, they were healthy. वो लोग अमीर थे और स्वस्थ आरोग्य थे। Do you know how it happened? आपको पता है वो कैसा हो गया? When God brought them out. कब खुदा ने उनको जब बाहर लाया तो So many plagues, 9 plagues took place. वहां पे 9 वहां पे उपद्रव उनको आया था। Still king hardened his heart. फिर भी वहां पे वो राजा उनका हृदय को कठिन बना लिया था। Then God said, उसके बाद खुदा ने बोला tomorrow all the firstborn child will die. कल के दिन पहला जो बच्चा पैदा हुआ ये हर एक वहां पे मारा जाए बोल के। What you should do is, आपको क्या करना है? all God's children सारे खुदा के बच्चे लोग should take a lamb and give a sacrifice. आप लोग वहां पे बकरी को लेके वहां पे बलिदान देना चाहिए बोलकर बोले। Apply the blood of the lamb on doorpost. और सारे वो बलिदान किया वो बकरी का लहू सारे घर के सामने वो वहां पे छापा लगा बोलकर कहे। Wherever blood is applied, death will not be there. जहां कहीं भी लहू वहां पे खून लगाया गया है वहां पे मरण मृत्यु नहीं आता। Wherever blood is not there, death will occur. लेकिन जहां कहीं भी वहां पे लहू नहीं रहता है वहां पे मृत्यु आता है। Now come with me to Exodus 14th chapter. निर्गमन के 12th chapter. 12वीं अध्याय की ओर आइए। Exodus 12:23. 12वीं अध्याय 23वां वचन निर्गमन। For the Lord will pass through to smite the Egyptians when he sees the blood upon the lintel and on 2 side posts. The Lord will pass over the door and will not suffer the destroyer to come into your houses to smite you. निर्गमन का 12वें अध्याय 23वां वचन। क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों के मराठा
जाएगा। इसलिए जहां जहां वो चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उसे लहू को देखेगा, वो वहां वहां वो उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा। Now listen, I'll explain, okay? मैं विवरण करता हूं, सुनिए। All of you look here. सब लोग इधर देखिए। On that day, two people were in Egypt. उस दिन वहां पे मिस्र देश में दो लोग थे। God also was there. Destroyer also was there. खुदा भी था, नाश करने वाला भी था। Who were there? कौन कौन थे? Say after me, God and destroyer. खुदा और नाश करने वाला। Destroyer came to kill the children. नाश करने वाला आया बच्चों को खत्म करने के लिए। God came to save the children. खुदा आया बच्चों को बचाने के लिए। And the Bible says, और बाइबल कहता है wherever the blood is applied, जहां कहीं भी चौखट पे वहां पे लहू वहां पे लगाया गया है, God did not pass by. God passed over. और खुदा उनके उनके सरिये नहीं चला, लेकिन खुदा उनके ऊपर से गया। I'll explain. Listen. मैं विवरण करता हूं। Try to follow. See, pass by means I just leave him and go. That is passing by. और ऐसा जा रहा बोले तो मुझे छोड़ के ऐसा आगे जाना। God do that. वो खुदा ऐसा नहीं किया। Wherever the blood was there, जहां कहीं भी लहू था, God passed over. खुदा उसके ऊपर He ऊपर से गया। didn't go. He just stood on that. और वो ऐसे ही नहीं गए, उसके ऊपर से जाता है। He protected that house. और उस घर को वो वहां पे संभालता था, सुरक्षित में रखता था। That is why it is called Passover. इसलिए वो कहता है पास ओवर बोल के। He was above that. उसके ऊपर से वो जाता है। When God protected, जब खुदा उनको सुरक्षित में संभालता है destroyer cannot enter and kill the children. और ये नाश करने वाला वहां पे प्रवेश करके बच्चों को खत्म नहीं कर सकता है। What is the difference between Israelites and Egyptians? और वो मिस्र लोगों में और इस्राएली लोगों में क्या वहां पे अंतर था? Israelites doorpost, the blood was there. और इस्राएलियों के घर के चौखट के ऊपर वहां पे लहू वहां पे लगाया गया था। The blood of the lamb was there. वहां पे जो बकरी का लहू लगाया गया था। In Egyptian doorpost, no blood. लेकिन वहां पे मिस्र लोगों के घर के चौखट में वहां पे लहू नहीं था। Wherever the blood is there, God's protection is there. जहां कहीं भी वहां पे लहू था, खुदा ने उसको वहां पे सुरक्षित में रखा। Now come with me to Malachi 4th chapter. अभी मलाकी 4 अध्याय की ओर आपका बाइबल को फिर आइए। Verse 2. 4 अध्याय 2 वचन। But unto you that fear my name shall the Son of Righteousness arise with healing in his wings. You shall go forth and grow up as a calves of the star. मलाकी 4 अध्याय 2 वचन में कहता है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पले हुए बछड़ों के समान आप कूदोगे और फदोगे। It says, unto you that fears my name. और जो आप मेरा भय मानते हो, Means who gives respect. It is not, we don't really fear God. We give reverence to God. भय बोले तो उसको देख के हम लोग वहां पे हिलते नहीं, लेकिन उसको आदर करते समझ। When we give reverence for the Son of Righteousness has risen up with healing in his wings. कब उसको आदर करते हैं तो धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा चंगे हो जाओगे। The Son of Righteousness means it's God himself. धर्म का उदय होगा, वो सूर्य उदय बोले तो वो खुदा ही है। Hallelujah. Hallelujah. You know, the healing in his wings means he doesn't have wings. It's a figure of speech. He rises up with the healing for the people who give reverence for his name. और उसके नाम को जो कोई भी आदर करते हैं तो उसकी किरणों से उनको चंगा करेगा बोलकर कहता है। He is a source of healing. और वो चंगाई करने का मूल है।
And the result is they all were very healthy. They go out like a fatted calves. जब वो चंगे हो जाएंगे बोले तो वो एक अच्छे से हो जाएंगे. That's what happened in Egypt. वही मिस्र देश में हो गया. God protected them. और खुदा ने उनको संभाल कर रखा था. Not only he protected the firstborn children, खाली पहला पैदा हुआ बच्चों को ही संभाला नहीं, his protection brought healing for every Israelites. उनकी संभालता में हर एक इजरायली लोगों को चंगाई आ चुका था. That is why when they went out, no one was feeble. इसीलिए जब वो लोग उससे बाहर आए थे तो कोई भी वहां पे निर्बल नहीं थे. No one was feeble. कोई भी बलहीन नहीं थे. This is Old Testament. वो पुराना करार है. Now what about New Testament? अभी नया करार के बारे में क्या? What happened that day is a picture of my salvation, your salvation. उस दिन जो क्या हुआ था वो जो चित्र मेरे उद्धार के बारे में और आपके उद्धार के बारे में है. Do we have Passover? हमको वो पास हो रहा है क्या? Hello? Is it necessary for us to kill lamb every year? हर साल हमको बकरी काटने का जरूरत है क्या? Why? क्यों? And God told them you have to practice this. और खुदा ने बोल दिया कि आपको ये करते आना है. How long they practiced? कब तक ये करते आना है? 1 Corinthians 5:7. पहला कुरिन्थिया 5वें अध्याय 17 वचन. Purge out therefore the old leaven, that you may be a new lump, as you are unleavened. For even Christ our Passover is sacrificed for us. 5वें अध्याय 7वें वचन. पहला कुरिन्थिया. पुराना खमीर निकल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंथ हुआ आटा बना जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है. Hallelujah. Paul says Christ our Passover is sacrificed for us. क्योंकि पौलुस ने कहता है हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है. Look here. यहाँ पे देखिए. Christ Passover is sacrificed for us. मसीह हमारे लिए बलिदान होके वहां पे फसवा किया है. In the Old Testament they needed one lamb. पुराना करार में उनको एक बकरी चाहिए. In the New Testament we don't need a lamb. नया करार में हमको वहां पे बकरी नहीं चाहिए. Instead of lamb, Christ himself died on the cross. बकरी के जगह में ये मसीह वहां पे बलिदान दिया है. He shed the blood. उसका लहू बहाया है. He is our Passover. वो ही हमारा फसह है. I mean, Passover means, I told you, it's like stretching both the hands and protecting. फसह बोले तो वहां पे दोनों हाथ वहां पे ऐसा लंबा करके संभालना. Say in English, Christ is my Passover who sacrificed himself for me. जो मसीह मेरे लिए बलिदान हो गया, मेरे फसह हो गया. I'll tell you, you can have a good health and long life because Christ is your Passover. He sacrificed himself for you. आपको तंदुरुस्ती रहता है क्योंकि मसीह आपका वहां पे फसा बन चुका है और बलिदान आपके लिए हो चुका है. In the Old Testament, पुराना करार में after Passover, वो फसा होने के बाद no one was poor, no one was sick. कोई भी वहां पे बीमारी में नहीं रहते थे, कोई भी वहां पे पाप में नहीं रहते थे, Sick. बीमारी में नहीं रहते थे. No one was feeble. और कोई भी वहां पे निर्बल में नहीं रहते No थे. one was poor. और कोई भी वहां पे गरीबी में नहीं रहते थे. Hallelujah. Hallelujah. Even in the New Testament, अभी भी अभी नया करार में after salvation, और उद्धार के बाद, because Christ is my Passover, क्योंकि मसीह मेरा वहां पे फंसा हो चुका है, इसीलिए who sacrificed for me, मेरे लिए जो बलिदान हो गया,
Because Christ is your Passover lamb who sacrificed himself for you, जो आपके लिए मसीह वहां पे बलिदान हो गया बकरी होने के नाते, no one will be poor, no one will be feeble. और कोई भी आपके अंदर वहां पे गरीबी में नहीं रहते हैं, कोई भी आपके अंदर बलहीन नहीं रहते हैं। Say, no one will be poor, no one will be feeble, no one will be sick. कोई भी निर्बल में नहीं रहते हैं, कोई भी गरीबी में नहीं रहते हैं, No one will be sick. कोई भी बीमारी में नहीं रहते हैं। One day, एक दिन 30 lakhs people got healed. 30 लाख लोग चंगाई प्राप्त कर ले You know चुके why? हैं। आपको पता है क्यों? The blood was applied क्योंकि वहां पे लहू वहां पे लगाया गया था and God protected them. और खुदा उनको वहां पे सुरक्षित में God संभाला healed them. और खुदा ने उनको चंगाई किया था। Hallelujah. Hallelujah. One night it happened. एक दिन में वो हो गया। You know, the truth is, लेकिन सत्य ये है, you are already healed. आप पहले ही चंगे हो चुके You हैं। are healed the time you accept Jesus. कब आप यीशु मसीह को अपना लिए उसी समय आप चंगाई हो चुके हैं। All you have to do is tell your mind, I am healed. आप एक ही करना है, आपके मन को आप कहना है मैं चंगा हो चुका हूं बोल के। Amen. Okay, you still doubt is there अभी भी शक रहता है whether we are healed or not, healed or not. हम चंगे हुए क्या नहीं। Come with me to Colossians first chapter, कोलोसियों के पुस्तक की ओर आइए। 13-14. कोलोसियों का First chapter, पहला अध्याय verse 13-14. 13 और 14 वचन। कोलोसियों का पहला अध्याय 13 और 14 वचन। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हम छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। It says, no, who has delivered us from the power of darkness and has translated us into the kingdom of his dear Son, in whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins. Hallelujah. हालेलुया। Now listen. अभी सुनिए, I have preached this scripture many times. ये वचन में बहुत सार इसको मैं प्रसंग बोला हूं। I'll repeat. This is about redemption. मैं फिर से दोहराता हूं, ये छुटकारे के बारे में है। Before redemption, we were slaves. छुटकारा होने से पहले हम लोग गुलाम थे। Before redemption, all of us were in kingdom of darkness. हम लोग छुटकारा होने से पहले हम सभी लोग अंधकार के वश में थे। Here, Paul talks about two types of kingdoms. यहाँ पे पौलुस ने दो नमूने के राज के बारे में कहता है। How many types? कितना नमूना है? Show your hand. आपके उंगली को बताइए। How many? How many? How many? कितना? You all look like Tamil Nadu politicians. Two types of kingdoms. दो नमूने का राज। One is kingdom of darkness. One is kingdom of light. एक अंधकार का राज और एक उजियाला का राज। In the kingdom of darkness, अंधकार के राज में Jesus was not there. यीशु मसीह नहीं था, Sin was there. पाप था वहां पे, Sickness was there. बीमारी था, Poverty was there. गरीबी था, Failure was there. हारा हुआ था। Hallelujah. You know, this kingdom of darkness came into existence when man separated from God. कब मनुष्य खुदा से अलग हुआ था तभी ये अंधकार का राज वहां पे दिखना शुरू हो गया। But परंतु Bible says God transferred us from the kingdom of darkness to the kingdom of light. बाइबल कहता है खुदा ने हमको अंधकार के राज से हमको उजियाला के राज में प्रवेश करने दिया बोल के। Through his blood. और उसकी लहू के जरिए। Hallelujah. हालेलुया। Now where are you? अभी आप कहाँ हैं? Say, through the blood of Jesus, my Father has transferred me from kingdom of darkness to kingdom of light. यीशु मसीह के लहू के जरिए मेरे पिता मुझे अंधकार के राज से उजियाले के राज्य में
लाया है। How you came to kingdom of light? कैसे आप उज्याले के राज्य में आए हैं? Christ is your Passover. मसीह आपका फसह है, Sacrificed himself for you. आपके लिए वो बलिदान दे चुका है, Shed his blood. उसका लहू को बहाया है, Totally took you from that kingdom to the kingdom of light. और परिपूर्णता से उस राज्य से आपको उज्याले के राज्य में डाला है। Do you believe when the blood of Jesus transfers, totally he will transfer? कब यीशु मसीह का लहू जब वहां पे डालता है तो परिपूर्णता से ही डालते ना? थोड़ा बाकी? No. Fully he will transfer. थोड़ा भी बाकी नहीं है, पूरी तरीके से हमको वहां यहाँ पे डाला In है। the kingdom of light, और उज्याले के राज्य में Jesus is there. यीशु मसीह है, No, पाप नहीं है, no sickness, बीमारी नहीं है, no poverty. गरीबी नहीं है। Me, इसका अर्थ यह है, in the kingdom of darkness, sorry, in the kingdom of light, और उज्याले के राज्य में no one will be poor, कोई भी गरीबी नहीं रहते हैं, no one will be feeble. और कोई भी निर्बल नहीं रहते हैं। Why? क्यों? The blood of Jesus transferred us. क्योंकि यीशु मसीह का लहू हमको उधर से लाया है इधर। How many of you understand what I'm saying? कितने लोग समझे मैं जो Say कह after रहा me, हूं? in the kingdom of light, no one will be poor, no one will be feeble, no one will be sick. उज्याले के राज्य में कोई भी निर्बल नहीं रहते हैं, बीमारी में नहीं रहते हैं, गरीबी में नहीं रहते हैं। See, this comes with your salvation. और ये आपके उद्धार के जरिए आता है, Grace provided. अनुग्रह से दिया गया है। You believe it, you enjoy it. आप विश्वास किए हैं, You will enjoy. आप आनंद करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। By faith, you can have a long life. और विश्वास के जरिए आपको लंबी आयु रहता है। By faith, you can have a good health. आपको विश्वास के जरिए आपको तंदुरुस्ती, स्वस्थ आरोग्य रहता है। Amen. Are you happy? आप खुश हैं? Shall we all stand up? हम सब लोग खड़े हो जाएंगे। Thank God for the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू के लिए खुदा को धन्यवाद करिए। Thank God Christ is our Passover. और खुदा को धन्यवाद करिए कि यीशु मसीह हमारा फसा हो चुका है। He sacrificed himself for you and me. मेरे लिए और आपके लिए वो बलिदान हो चुका है। He transferred us from darkness, kingdom of darkness to kingdom of light. हमको वहां पे स्थलांतर किया, उधर से इधर बदलाया है, हम अंधकार के राज्य से उज्याल के राज्य में डाला है। Now, no sickness for us. अभी हमको बीमारी नहीं रहता है, No sickness. बीमारी नहीं रहता है, We have only health हमको तंदुरुस्ती ही रहता है। because we belong to this blood covenant. क्योंकि हम लहू की वाचा से संबंधित है, इसलिए। Shall we just thank him? क्या हम सब लोग उसको धन्यवाद Thank करेंगे? him because he died today. You have a health. वो उन्होंने मरा है, इसलिए आज के दिन आप तंदुरुस्ती में जी रहे हैं। He died. You have a long life. वो मरा है तो इसलिए आपको लंबी आयु है। He shed blood. You have a health. वो लहू बहाया है, इसलिए आप वहां पे तंदुरुस्ती में हैं। You have God's protection because of the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू के जरिए आपको वहां पे संभालना है, सुरक्षित है। Because the blood of Jesus is protecting you, destroyer cannot destroy you. यीशु मसीह का लहू आपको वहां पे संभाल रहा है, इसलिए नाश करने वाला आपको नाश नहीं कर सकता है। Devil cannot bring sickness and destroy you because you are protected by the blood of Jesus. शैतान आपको वहां पे बीमारी नहीं लाता है, आपको वहां पे गरीबी में नहीं डालता, क्योंकि यीशु मसीह का लहू आपको वहां पे संभाल रहा है। Oh, thanks for the blood of Jesus. यीशु मसीह का लहू के लिए मैं धन्यवाद करता Thank you हूँ। for the blood of Jesus. यीशु मसीह का लहू के लिए धन्यवाद करता हूँ। Father, we thank you. पिता, हम धन्यवाद करते हैं, We worship you. हम आराधना करते We हैं, give you all the glory. हम सारे महिमा आपको देते हैं। Oh, thank you, Jesus. धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। Thank you, Christ. मसीह, आपको हम धन्यवाद करते हैं। You are our Passover. तू हमारा फसा बन चुका है। You sacrifice yourself for me. अपने आप को मेरे लिए तूने बलिदान दे चुका है। Today I am saved. आज मैं उद्धार पा लिया हूँ। No one will be feeble in the church. कोई भी कलीसिया में बलहीन नहीं रहते हैं, Because you paid the price. क्योंकि तूने उस कीमत को चुकाया है। In Jesus' name we thank you. यीशु मसीह के नाम में हम धन्यवाद करते हैं। Amen.
Amen.